دائمة سرمدا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق اللہ مولانا العظیم. جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو. بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. پچھلی آیت جو رہ گئی تھی کل، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ. اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو. یہ جہاد کا حکم ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. لیکن ساتھ ہی رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا تکلف الا نفسک. آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں دی جائے گی. ایک فارمولہ رب تعالیٰ کا سارے بندوں کے لیے یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دوسری جگہ بھی قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنا وہ سہ سکتا ہے اتنی ہی اسے تکلیف دیتا ہے یا آزمائش، امتحان، جو بھی کہہ دیں. تو اس طرح کا جملہ کہنا کہ یہ برداشت سے باہر ہو گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ برداشت سے باہر کوئی چیز دیتا ہی نہیں. جتنا تم اٹھا سکتے ہو، اگر برداشت سے باہر آپ کے ہے تو پھر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکو گے. زندہ بھی ہیں اور بول رہے ہیں کہ برداشت سے زیادہ تکلیف ہوگی. اگر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو زندہ ہو کر بول کیسے رہو پھر؟ یعنی آپ برداشت کر پا رہے ہو. اب اس کو ایک میں دنیاوی مثال میں بھی آپ کو سمجھا دوں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پیر میں چوٹ آئے یا ہاتھ میں چوٹ آئے، خون زیادہ بہہ گیا، درد کی شدت بڑھ جاتی ہے. کسی بھی درد کو آپ دیکھ لیں ایک حد تک، ایک لمٹ تک وہ درد کرتا ہے. اور اگر درد بھی اوور ہو گیا، زیادہ ہو گیا تو بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی. یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولت رکھی ہے، آپ ایٹومیٹک بے ہوش ہو جائیں گے اگر درد آپ کا زیادہ بڑھ گیا تو. چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے ٹائم پر ہو یا کسی زخم کے لگنے کے وقت ہو، کسی بھی جگہ آپ درد اگر زیادہ ہو گیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ بے ہوش ہو جاؤ. کیوں؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے تمہارے اوپر. جہاں تک بندہ برداشت کر سکتا ہے وہاں تک رب تعالیٰ اسے ہوش میں رکھتا ہے، اور اگر درد وہ برداشت نہیں کر سکتا تو رب تعالیٰ اسے بے ہوش کرتا ہے تاکہ یہ اٹھا سکے درد کو. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں دیا. تو یہ شکایتیں چھوڑ دو. اس طرح سے کہنا کہ ہماری طاقت سے، ہماری برداشت سے زیادہ مصیبتیں آ گئیں، یہ غلط جملے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو ساتھ میں یہ لفظ فرمایا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے جہاد میں جانا بھی برداشت کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب یہاں پر مجھے بتاؤ اسلام میں ایک ایسا حکم، ایک ایسا آرڈر لا کر کے مجھے بتا دیں کہ جو انسان کر نہیں سکتا تھا اور اللہ نے اس کے اوپر لاگو کر دیا ہے، ڈال دیا ہے. جو اس کے بس میں نہیں تھا، طاقت میں نہیں تھا، وہ ڈال دیا گیا. کون سی ایسی چیز ہے؟
कोई ऐसी चीज नहीं है। अब उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं, इस्लाम में ऐसी कोई चीज, फितरत का मजहब है ये दीन जो है ना हमारा, फितरत के मुताबिक है। जो जो चीजें इंसान कर सकता है बस उसी का ऑर्डर है, जो इसकी ताकत से ज्यादा नहीं कर सकता ऐसा कोई ऑर्डर नहीं। मिसाल के तौर पर सोना इंसान की फितरत में है, जैसी रात आए नींद आएगी, या दिन में भी सो लेते हैं लोग, तो नींद आना और सो जाना ये इंसान की फितरत है। अगर कोई ऑर्डर ऐसा आ जाए कि आप 48 घंटे या 70 घंटे सो नहीं सकते, तो गोया कि ये फितरत के खिलाफ कानून आ गया, बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई इंसान। ऐसा कोई ऑर्डर है इस्लाम में कि तुम्हारे लिए सोना मना है, हत्ता कि संन्यास लेना भी मना है, मुजर्रद रह जाना इस्लाम में, क्योंकि इंसानी जरूरियात है शादी करना। मर्द को औरत की तलब है, औरत को मर्द की तलब है, ये फितरी है, पैदाइशी। दोनों के दिलों में अल्लाह ताला ने एक दूसरे का उन्स रखा है, जिसकी वजह से इसे इंसान कहते हैं। और इस चीज पर अगर हम बंदिश लगा दें, बंद कर दें, जैसे बाज योगी होते हैं, सन्यास लेते हैं और कहते हैं कि नहीं हम औरत को छू भी नहीं सकते, और ऐसे ही जोगी लव जिहाद का कानून भी लाते हैं। जो कभी औरत को देखे भी ना हो या जिनको औरत संभालना मालूम भी ना हो, वो शादी के कानून क्यों बना रहे हैं? आप देख नहीं रहे, ऊपर से नीचे तक ये सब मुजर्रद हैं, बैचलर लोग। बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपने आप को इन चीजों से दूर रखा है। इस्लाम इस चीज का हुक्म नहीं देता। ईसाई मजहब में भी नन और पादरी, इनके यहां भी शादी इनके लिए जायज नहीं है। उसको कहते हैं वो दुनिया है और दुनिया से दूरी इख्तियार करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया दीन ये है कि तुम औरतों के साथ भी रहो और अल्लाह की इबादत का हक भी अदा करो। कुछ लोग ये समझते हैं सारी दुनिया सिर्फ औरत ही है, औरत को छोड़ करके दूर आ जाना यही दुनिया छोड़ने के बराबर नहीं। मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत के लिए अगर तुम परवरिश की जिम्मेदारी उठाते हो, एक लुकमा भी उसे खिलाया तो सदके का सवाब है। दीन है उसमें भी है। तो बात ये चल रही है कि तुम्हें कोई भी ऐसा हुक्म नहीं दिया गया जो तुम्हारी ताकत के खिलाफ हो, बर्दाश्त से तुम्हारे बाहर हो, ऐसा कोई हुक्म इस्लाम में नहीं आया। अब यहां बात आती है जिहाद की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब ताला ने फरमाया फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में आप लड़ें। और ये हुक्म आपके लिए बर्दाश्त से बाहर वाला नहीं है, आपकी कैपेसिटी में है, आप कर सकते हो जिहाद। तभी तो हुक्म दिया ना अल्लाह ने, सहाबा को भी इसीलिए हुक्म दिया। अब मेरे अजीजों, यहां पर बहुत सारे लोग जो इसके खिलाफ हैं या अपनों में भी जो मुझे तानो तशनी करते हैं इस बात को लेकर, क्या जरूरत है कि ये जिहाद की आयतों की तफसीर बयान करना या लफ्ज जिहाद को बोलना। हालात तो सही नहीं है, हालात खराब है। मेरे अजीजों, हालात कब अच्छे थे तुम्हारे? क्या मक्का मुकर्रमा में हुजूर ने जब तबलीग शुरू की थी बहुत अच्छे हालात थे? मदीना तैयबा जब हिजरत कर रहे थे तब अच्छे हालात थे? कौन से जमाने में मुझे बताओ। अच्छे हालात में बदर हो गई, उहद हो गई, खंदक जैसी जंग हो गई, अच्छे हालात में हुई थी। हालात तो वैसे ही रहेंगे। अब उन्हीं खराब हालात को सही तरीके से टैकल करने के लिए अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम्हारे लिए नाजिल फरमाए। जिहाद का एक सबसे बड़ा मफहूम अपना सेल्फ डिफेंस करना, और आदमी अगर वो भी भूल जाए तो फिर वो जानवर से ज्यादा गिर गया है। जानवर भी अपना सेल्फ डिफेंस करता है। जाओ किसी मुर्गी के बच्चों को छू करके देखो, वो ठोंक मारेगी। देसी मुर्गी की बात कर रहा हूं, उसके बच्चों को अगर छूने की कोशिश करोगे तो वो ठोंक मारेगी। अब बाकी वो फार्म मुर्गियों का तो मसला ही अलग है। तो वो सेल्फ डिफेंस खुद करती है मुर्गी, अपने बच्चों को भी संभालती, हालांकि उसकी ताकत नहीं है इंसान से लड़ने की।
इंसान से लड़ने बराबर की ताकत नहीं, लेकिन हमला करती है। आप इसी तरह से कुत्ते के या बिल्ली के या किसी जानवर के छेड़खानी करें उसके साथ तो पलट करके हमला करेंगे, जबकि आपकी ताकत ज्यादा है, वो आपसे लड़ नहीं सकते, फिर भी कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं डिफेंस करना अपने आप का। तो जानवर भी इतना कर लेता है। अजीजा ने गिरामी वकार, इतना पावर और इतना इख्तियार हर इंसान को होना चाहिए कि वो अपना डिफेंस कर सके। अब यहां अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह हुक्म अता फरमाया है, तो रहमतुल लिल आलमीन है मेरे आका, तो क्या जिहाद जुल्म की दावत देता है? जो नबी रहमत बन करके आए हैं, अगर जिहाद जुल्म होता तो कभी मेरे आका जिहाद नहीं फरमाते। जिहाद का हुक्म भी रहमत फैलाने के लिए आया है। जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें खत्म करने के लिए आया है। जो फसाद मचाएं, अल्लाह की जमीन को नापाक करें, उनसे जमीन को पाक करने का हुक्म दिया गया है। यह काम तो पुलिस डिपार्टमेंट भी करती है, नहीं करती है? अगर उसे किसी जगह पर ऐसे लोग मिल जाएं जो पूरे मोहल्ले को खराब कर रहे हों, तो क्या उन्हें नहीं पकड़ती हो? बाज ऐसे मुजरिमीन होते हैं जो नाक में दम कर चुके होते हैं, ऑर्डर तो उनको इनकाउंटर करने का भी आ जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? इसलिए कि जमीन को पाक रखना। तो ये जब हुक्म हर मुल्क वाला अपने डिपार्टमेंट को देता है कि जमीन को पाक रखें फसादात से, इसी का हुक्म तो इस्लाम भी देता है। यही आयात जिहाद हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को हुक्म दिया कि फसाद करने से इंसानों को बचाए रखो, और अगर कोई फसादी हो जबरन जुल्म और सितम करके इंसानों को मारता तोड़ता हो तो उसके खिलाफ खड़े होने का नाम जिहाद है। अब आगे की आयतें मैं पढ़ता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है असल्लाहु अन यकुफ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू। हाँ, अगर तुम खड़े हो गए तो अल्लाह फरमाता है करीब है कि अल्लाह तुम्हें काफिरों की सख्ती से रोक देगा। अल्लाह तुम्हारी मदद का वादा कर रहा है, करीब है कि अल्लाह काफिरों की सख्ती रोक दे। वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला, और अल्लाह की आंच सबसे सख्त तर है। यह आंच का तर्जुमा किया है आला हज़रत ने, जंगी ताकत को कहते हैं। अब उसकी एक मिसाल मैं बता रहा हूं। एक तरफ आप 10 लोग हैं, सामने एक फौज 1000 की खड़ी है, तो आपको डर तो आएगा, खौफ आएगा कि हम 10 लोग हैं, कैसे लड़ेंगे। लेकिन अगर आपसे यह कह दिया जाए कि वो 1000 के पास कुछ भी नहीं है, वो हाथ भी नहीं उठा सकते, लेकिन तुम्हारे पास बहुत बड़ी ताकत है, तो थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। ठीक है, हमें बताया गया है कि बहुत कुछ हमारे पास है, उनके पास कुछ भी। तो मेरे अजीजों, तुम्हारे पास बहुत कुछ की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सीधे ये फरमा रहा है, चाहे वो जितने भी हो, तुम चाहे जितने भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अल्लाह की ताकत जिसके साथ हो तो फिर कौन सी ताकत चाहिए तुम्हें? अल्लाह करीम फरमा रहा है वल्लाहु अशद्दु बअसन, और अल्लाह जंगी ताकत में सबसे ज्यादा सख्त है। उससे भी भला कोई मुकाबला कर पाएगा? अब मुकाबला करने वालों की थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं बता दूं, जिन्होंने अल्लाह से भी मुकाबला करने की कोशिशें की हैं, और आज जो पूरी दुनिया में अथल पथल चल रहा है, ये भी इसी का एक हिस्सा है। खुदा से लड़ने की तैयारियां चल रही, आपको मालूम नहीं? यहूदी पूरी दुनिया में ये क्यों हलचल मचाए हुए हैं? क्या इनका मकसद क्या है? क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? मियां, इनके पास तो सब आ गया, अभी पेट्रोल मिसाइल आ गए, सारे न्यूक्लियर हथियार आ गए, सब कुछ तो है इनके पास। तकरीबन दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सबके ये मालिक हैं। गोल्ड के ये मालिक हैं, करेंसी के ये मालिक हैं। दुनिया में आज जो बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे वो यूएनए की शक्ल में हो, उस पर इनकी इजारादारी है। वर्ल्ड बैंक, उस पर इनका कब्जा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आज कोरोना में बहुत ज्यादा पेश देखा गया है, उस पर उनका कब्जा है।
तकरीबन तो दुनिया के बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं या कंपनियां हैं या फिर इदारे हैं, ये सब के सब इनके अंडर में। अब और क्या चाहिए इन्हें, और क्या चाहिए? यहां मुसलमान को एक घर मिल जाए तो सुकून से बैठ जाता है, खत्म हो गया, और आगे तो चाहिए ही नहीं। वहां पूरी दुनिया तकरीबन उन्होंने डील कर ली। और हदीस पाक में भी मिलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम देखना कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया में हरमैन तय्यबैन को छोड़कर, मक्का और मदीने को छोड़कर तकरीबन पूरी दुनिया में यहूदी और ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और उसके बाद फिर जवाल भी आएगा। और यह भी हदीस है, तुम देखोगे कि पूरी दुनिया में हर मुल्क पर इस्लाम ही का परचम लहराएगा। ये भी हदीस पाक में है, ये भी है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्लाह से जंग करने की जिन लोगों ने प्लानिंग की थी वो आज की तारीख नहीं, बहुत पुरानी तारीख है। नमरूद का नाम सुना होगा आपने। मुकद्दस किताबों में, जो इनकी मुकद्दस किताबें हैं, उसमें मिलता है एक वाकया कि नमरूद सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे नमरूद आए। नमरूद असल में नाम नहीं होता, बल्कि इराक का जो भी बादशाह होता था उसे नमरूद कहा जाता था। ये एक इस्तिलाह है, डेफिनेशन याद रख लें आप। कैसर और किसरा भी नाम सुनते रहते हैं आप, मैंने इसको कई मर्तबा बताया, ये नाम नहीं है, ये लक़ब है। जो मुल्क रोम का बादशाह होता है उसको कैसर कहते हैं, और जो ईरान का बादशाह होता है उसको किसरा कहते थे, और जो मिस्र का बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे। तकरीबन 17-18 फिरौन आए हैं, फिरौन कई हैं। इसी तरह नमरूद भी बहुत सारे आए। एक नमरूद का वाकया पुरानी किताबों में ये मिलता है कि उसने बहुत ताकत हासिल की थी। उसकी ताकत का हाल ये था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था और जंगली जानवरों से तक मुकाबला करता था, शेर, हाथी वगैरह से भी। इतनी ताकत उसके पास, और कभी बीमार भी नहीं हुआ था। तो लोगों में उसका चर्चा ऐसा था कि ऐसा लगता है कि ये पूरे इंसानों में एक अलग किस्म का इंसान है, ये इंसान नहीं, ये भगवान है। जैसे लोग आज सोच लेते, थोड़ी सी शक्ति ज्यादा हो जाए तो भगवान हो गया, थोड़ा सा अगर पावर ज्यादा हो गया तो भगवान हो गया। जैसे अब हमारा पीएम भी करीब करीब पहुंचने के भगवान के। तो ये नमरूद को भी इन लोगों ने इसी तरह से बना लिया था तकरीबन। अब जिसको चेले इस तरह से बनाते हैं वो खुद बन भी जाता है, वो सोचने भी लगता है हाँ मैं तो हूं, लोग तो मुझे बोल रहे हैं। तो नमरूद ने यह सोचा कि मैं खुदा हूं और लोगों को सजदा करने का हुक्म दिया। सारे लोग अक्सर उसकी इबादत में लग गए। जो उसकी इबादत नहीं करता उसे कत्ल कर देता, मार डालता या जेलों में बंद कर देता। बड़ा जुल्म किया उसने। अब उसके वजीरों ने, ये यहूदियों की तारीख में बता रहा हूं, ये ऑलरेडी एक बार हो चुका, अब उसको दोबारा रिपीट किया जाने वाला है। अब ये जो दुनिया में हलचल चल रही है, आपको लिंक में दे रहा हूं। क्यों ये सब हो रहा है, आपके जहन में डायरेक्ट बात आ जाएगी। क्या करना चाहते हैं आज ये इतनी तरक्कियात क्यों करना चाहते हैं? सुनिए, नमरूद से उसके खास वजीरों ने कहा बादशाह सलामत, और उसको खुदा कहते थे कि सब कुछ तो है आपके पास, ताकत और कुव्वत है, इंसानों पर आपकी हुक्मरानी है, जानवरों से तक आप मुकाबला कर लेते हो, सब कुछ है, आप कभी बीमार भी नहीं होते। लेकिन एक चीज है कि जिसमें आजिज हो सकते हैं। कहा क्या है वो? कहा मौत। ये अगर आ गई तो क्या करेंगे? मौत अगर आ गई तो क्या करेंगे? सारा धरा का धरा रह जाएगा। महलात भी बहुत बना लिए। उस वक्त उसने वर्ल्ड टावर बना दिया था, जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, बहुत ऊंची इमारत उस जमाने में। और क्यों बनाया था वो भी मैं बताता हूं। तो उसने अपने वजीरों की ये सलाह और उनके मशवरों को सुन करके कहा कि ये तो फिक्र की बात है, आखिर करें क्या? कहा कि एक ही सूरत रह जाती है। अब तकरीबन दुनिया आपकी फॉलोअर हो चुकी है, सारे इंसानों को जमा कर लें, सारे इंसानों को एक जगह जमा कर लेते हैं और सब इंसानों को फौजी बनाते हैं, सारे इंसानों को
फौजी बनाते हैं और इन सब को लेकर के खुदा से लड़ते हैं, पूरी दुनिया को एक तरफ लेकर के खुदा से लड़ते हैं। और एक बार अगर उसको मारकर हम गिरा दिए तो मौत और हयात तो हमारे हाथ में होगी। अब देता तो वही है ना, मौत तो वही देता है, तो टारगेट उसी के साथ क्यों ना कर दिया, उसी को क्यों ना किया जाए। तो उसकी बात ये लगी कि हाँ ये काम शुरू करना चाहिए। तो चेले चपाटों ने प्रोजेक्ट दिया और ये काम शुरू कर भी दिया। उसे मालूम भी नहीं है, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते हैं। ये नमरूद ने तैयारी जब शुरू किया तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, बहुत बड़ा शहर बनाया जहां पर तकरीबन दुनिया के सारे इंसानों को जमा करना था। और बादशाह का ऑर्डर ये आया कि दुनिया की सारी जुबानें खत्म करके एक ही लैंग्वेज रखी जाए। कम्युनिकेशन जरूरी था फौजियों को ऑर्डर देने के लिए, सबकी जुबान एक होनी चाहिए, सब फौजी हों, ट्रेनिंग दी जाए। अब फिर मसला आया कि वो मिलेगा कहां खुदा, जहां से उस जंग करना है ना, लड़ाई करना है। अब उसके फरिश्ते भी हैं, उसकी ताकत और कुव्वत भी है, कैसे उसके साथ लड़ाई की जाए। मेरे अजीजों, ये अजीब सी मजे की बात है कि दुनिया ने ये तक सोच लिया अपने ही पैदा करने वाले के साथ लड़ाई के लिए। इसके बाद वजीरों ने कहा कि सुना आसमानों पे रहता है, बड़ी इमारत क्यों ना बना ली जाए जो आसमान तक पहुंचती हो। तो उस काम के लिए ये टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी, देखते हैं जितनी लंबी बन जाए। बनाई और बनाता रहा, फौज भी जमा हो गई, लैंग्वेज सबकी एक हो गई, जुबान सबकी एक, करेंसी भी सबकी एक ही सिक्का चलेगा, बाकी किसी की नहीं। हुकूमत सिर्फ एक ही नमरूद की थी। अब इसके बाद उसे उस बिल्डिंग में चढ़ना था, चढ़ करके ऊपर से देखना था कि खुदा मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिले तो और बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, जहां वो मिल जाए लड़ाई करेंगे। मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी कभार मैं ये बयान करता हूं तो हैरत भी होती है, लेकिन यहां बात यह आई है, अल्लाह ने जो फरमाया ना वल्लाहु अशद्दु बअसन, और अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, उस पर मैं अर्ज कर रहा हूं। देखो अल्लाह की जंगी ताकत क्या है। आज अभी कोई इतना बड़ा नमरूद आया नहीं है जो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके सारे ये काम कर ले, उस जमाने में वो कर चुका था। अब जब उस इमारत पर वो चढ़ने लगा, अब जो बाइबल वगैरह इनकी पुरानी किताबें उसमें ये इबारात मिलती हैं, आयात मिलती हैं, कुरान और हदीस में तो इसका तज़किरा नहीं मिला। इजराइली जो रिवायात हैं या जो पुरानी किताबें हैं उसमें ये मिलती है बात। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने फरिश्तों से कि ऐ मलाइका आ जाओ, हम भी जरा देखें कि हमारा एक बंदा हमसे जंग का इरादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, तो मलाइका सब के सब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐसे शख्स को क्यों ना हम हिला को बर्बाद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपने लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों को, जिनकी तादाद का इल्म हमें भी नहीं, बारिश के कतरों से ज्यादा अल्लाह के फरिश्ते, बहुत, उनकी तादाद का कोई अंदाजा नहीं कर सकोगे आप। अल्लाह ताला ने उन लाखों करोड़ों फरिश्तों में से एक फरिश्ते को सिर्फ दुनिया में भेजा, सब नहीं। एक फरिश्ते से कहा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जा तू दुनिया में उसकी बनाई हुई इमारत और उसकी फौज का मुआयना करके आ जा, जायजा लेकर के आ जा। तो फरिश्ता नीचे उतरा। एक बात याद रखें, फरिश्ते अपने रब ताला के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो हरगिज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये तो और बात है कि अल्लाह फरिश्तों को बार बार रोकता है कि बंदों पर अजाब न डाला जाए। अल्लाह के रोकने से वो रुके हुए हैं। और अगर फरिश्तों के ही हाथ में सब दे दिया जाए कि जो जो गुनाह करे, तो फिर वो बराबर ठिकाने सबको लगा देंगे, हर दिन रोज एक ठिकाने पे लगेगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी रहमत है जो रोक कर रखता है, अपने बंदों को मोहलत देता है। एक फरिश्ता आया, उसने देखा ये जंगी तैयारी को, और फिर
किससे जंगी तैयारी? अल्लाह से, जिसने खुद इन सब को पैदा किया, इनको सांस दे रहा है, इनको जमीन बिछा कर दिया, इनको आसमान का सुतून बगैर सुतून का छत दिया, और उससे लड़ाई के लिए। तो वो रिवायात ये बताती हैं कि वो फरिश्ते ने जलाल में आकर सिर्फ अपने पर जोर से हिलाए, पूरी इमारत जमीन में धंस गई, पूरी इमारत चली गई, और उसमें जो जमा फौजी थे वो हजारों की तादाद में खाकिस्तर हो गए, और नमरूद की पूरे छितड़े उड़ गए, खत्म। और फिर उसके बाद रब ताला ने फरमाया कि जितने जमा हुए थे सबकी जुबानें अलग अलग कर दो, सबकी जुबानें बदल डालो। तो सबकी जुबानें वरिष्ठों ने बदल डाल। ये क्या कह रहा उसे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कह रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा। आज भी वो हिकमत बाकी है पूरी दुनिया में। ये जो हजारों जुबानें हैं उसकी एक वजह यह भी है कि सब मिलकर के फितना ना करें, सब मिलकर के फितना ना करें। इसलिए ये तमाम चीजों में इख्तिलाफात डाल दिए गए, जुबानों का इख्तिलाफ। मेरे अजीजों, एक तारीख ये है, ये हो चुकी बात। अब अल्लाह की जंगी सख्ती आपने देखा, जंगी ताकत। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु अशद्दु बअसन, अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, वह अशद्दु तनकीला, और उसका अजाब बहुत जबरदस्त है। ये तो बहुत छोटी सी बात हमने देखी। इसी तरह से रब तबारक व तआला कभी भी अपनी जंगी ताकत के पूरे मज़ाहिर दुनिया में नहीं उतारे आज तक। एक होता है ना भाई, मेरे पास 100 लोगों का दस्ता है, आपने ललकारा, लाओ देखते हैं ताकत कितनी है। अगर मैंने 2 को भेजा तो गोया कि 2% ही तो उतारा, 10 को भेजा तो गोया कि मैंने 10% ही उतारा। अब जब 100 के 100 उतार दें तो कहा जाएगा कि पूरी ताकत झोंक दिया। आज तक दुनिया में रब ताला ने जंगी ताकत के लिए अपने पूरी ताकत का कभी मुजाहरा नहीं फरमाया। एक फरिश्ता आया, 2 फरिश्ते आए, या ज्यादा से ज्यादा 5000 फरिश्ते जो मैदान बद्र में उतरे थे मेरे नबी की हिमायत के लिए। वो भी इसलिए नहीं कि वो काफिर इतने सख्त थे कि 5000 से मुकाबला कराना था। कभी आप सोचते हैं बद्र के मैदान में जो मुशरिकीन आए थे, वो कितने थे? वो 1000 की तादाद में थे, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते कितने भेजे? 5000 की तादाद। क्यों? क्या 5000 फरिश्ते मिलकर के 1000 का मुकाबला करेंगे? इसलिए नहीं। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली तो यह है कि अपने नबी की अजमत और शान बताने के लिए कि अल्लाह ताला अपने उसका रसूल जब निकले तो 5000 फरिश्तों का दस्ता उसे अता करेगा। और दूसरी एक वजह मुहद्दिसी बुजुर्गों ने यह फरमाया कि यहां फरिश्ते खुद बेताब थे अपने नबी की फौज में शामिल होने के। तो रब तबारक व तआला ने उनको ये एजाज बख्शा, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये आकर के हुजूर से अर्ज भी किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में जब भी कोई बदरी सहाबी आते जो जंगे बदर में शरीक थे ना, वो कभी भी महफिल में आते तो हुजूर दूसरे सहाबा से कहते उनको जगह दे दो। ये बदरी सहाबी जिब्राइल अमीन आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपके सहाबा में बदरी सहाबा की इज्जत है, इसी तरह अल्लाह के सारे मलाइका में उन फरिश्तों की इज्जत है जो बद्र में उतरे थे। बदरी मलाइका की भी बड़ी ताजीम है। बहरहाल, तो अल्लाह ताला ने कभी अपनी जंगी ताकत का पूरा मुजाहरा दुनिया में नहीं फरमाया। एक वो बादशाह था जो अबरहा खाने काबा को ढाने के लिए निकला था और हाथियों की फौज लेकर के आया, और पूरे खाने काबा को खत्म करने के लिए उसने इतना बड़ा लश्कर जमा किया था। इतने बड़े बड़े हाथी थे, उसमें से एक हाथी भी अगर किसी घर को मार दे तो घर टूट जाए, जबरदस्त हाथियों। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अल्लाह फरमाता है, महबूब क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? क्या किया? बस छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा, वो भी क्या दे करके? बम बारूद दे करके नहीं, मिसाइल दे करके नहीं कि फौज आई है जाओ मिसाइल डाल दो। छोटी कंकरियां, और वो अबाबील चिड़ियां ऊपर से जब कंकरी गिराती थी, 3 कंकरी हर चिड़िया के पास थी, 2 पैरों में एक चोंच, जैसे ही वो डालती थी, जिस हाथी पर वो कंकरी गिरती
اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی. یہ بھی تو میزائل ہی ہے. اور ایسا کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. قرآن میں بعد میں فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھلی ہوئی مرغی کھا کر کے جو چھوڑتا ہے, اس طرح فوج کی حالت ہو گئی تھی. سب کے ٹکڑے ٹکڑے اور چمڑیاں چھلی ہوئی, گوشت اجڑا ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگی طاقت ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے گی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں, اللہ نے جب تمہیں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنگی طاقت بہت مضبوط ہے, بہت زبردست ہے, تو خوف کس بات کا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہمارے لیے اب حالات ایسے ہو گئے کہ سب کو بزدل بنایا جا رہا ہے. خوف, ڈر. میں بھی چند دن قبل عورتوں کی وہ یہ بیان بھی کر رہا تھا. میں نے اسلام کی وہ عورتیں بھی پڑھی تاریخ میں کہ دن میں کئی مرتبہ وہ ننگے ہاتھ سے تلوار کو پوچھتی تھی, صاف کرتی تھی اپنے شوہروں کو پکڑانے کے لیے, اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے. وہ خواتین ایسی تھی کہ ان کی ہتھیلیاں ہمیشہ تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی, تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی. یہ ہماری ماؤں کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھ سے تلوار کو یوں پوچھتی تھی کہ کبھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا, اور وہ اپنے شوہروں کو پکڑاتی, وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو. میرے عزیزوں, کاکروچ سے ڈرنے والیاں, چھپکلی سے ڈرنے والی عورتیں, یہ اگر تاریخ میں ہوتی تو شاید اسلام یہاں تک نہ آتا. جو معزز اور مقدس خواتین نے بہادری پیش کی تھی اس زمانے میں, آج وہ تو مردوں میں بھی نہیں ہے, آج وہ مردوں میں بھی نہیں, نوجوانوں میں بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی دور فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من العجز والکسل. یہ حضور دعا کرتے تھے, جس کا ترجمہ میں بتاؤں, اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے. بزدلی کا مطلب ڈرپوک آدمی, ہر چیز سے خوف کھانے والا آدمی, اللہ کا ڈر چھوڑ کر کے ساری دنیا سے ڈرنے والا. اور حضور جب پناہ مانگتے تھے اس چیز سے تو اندازہ کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے, مردوں کے اندر تو ہونا بھی نہیں چاہیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی جنگی طاقت کس قدر سخت ہے, لیکن کس کے لیے؟ جو اٹھا اس کے لیے ہے. اب آگے جو آیتیں آج میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. اب یہاں سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی پاس جا کر کے کسی کے لیے سفارش کرنا. دیکھیں دو طرح کی سفارش ہوتی ہے, سورس آپ بھی سوچتے ہوں گے لگاتے ہیں, تو دونوں طرح کے آپ استعمال کرتے ہوں گے. بعض کے لیے اچھائیوں کے لیے, بعض کے لیے 2 نمبری سفارش بھی ہوتی. مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرنا چاہ رہا ہے گورنمنٹ کا سامان, اور آپ نے جا کر کے عہدے دار سے سفارش کی کہ یہ میرا بندہ ہے, اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے دو, یہ کر لے. تمہاری سفارش پر اس نے چھوڑ دیا, تو قرآن کی آیت تو کہہ رہی کہ وہ چوری جو کر رہا ہے اتنا ہی حصہ تمہیں بھی ملے گا, اس گناہ میں تم بھی برابر کے شریک. کسی بھی گناہ کی سفارش کرنا. کوئی خاتون تھی اور تمہارے دوست کے دل میں اس خاتون کی ناجائز محبت آئی, دوست نے تمہیں کہا کہ شاید وہ تمہاری بات مان لے, ایک بار میری اس سے ملاقات کروا دو. تمہاری بات وہ خاتون مانتی تھی, اس سے جا کر کے اپنے دوست کی تم نے ریکویسٹ لگا دی کہ میرا دوست بڑا اچھا ہے, اس سے تم دوستی کر لو. تمہاری بات پر اس خاتون نے ناجائز محبت میں ہاں کہہ دیا. اگر ان دونوں نے ناجائز کام کیے تو وہ برابر کا گناہ تمہارے سر پر بھی ہے. یہ ناجائز سفارش.
हाँ, जायज सिफारिश वो बहुत तरीके की हो सकती है। आपने किसी बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बनाना था, किसी जगह आप लेकर के आए, रिक्वेस्ट लेकर के आए। अब हमारा दारुल उलूम है, मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे, बहुत सारे लोग आते हैं सिफारिशी, हम पहचानते नहीं है, लेकिन आप सिफारिशी बन करके आए, मैं आपको पहचानता हूं कि इसको रख लीजिए, इसको पढ़ा दीजिए। आप सिफारिश लेकर के बच्चे को आए, बच्चे को हमने ले लिया आपकी सिफारिश पर, आपको पहचानते थे। अब वो बच्चा जब हाफिज कुरान बना, उसका सवाब सिफारिश करने वाले पर भी। अद्दाल्लु इलल खैरि कफ़ाइली, मेरे आका फरमाते खैर का रास्ता बताने वाला खैर करने वाले के बराबर है। दोनों भी बातें याद रख लें। आप चल रहे थे रास्ते पर, आपसे किसी ने पूछा मस्जिद किधर है, आपने रास्ता बता दिया, वो मस्जिद में आया, जितनी रकात पढ़े अल्लाह ताला उतना सवाब उसे भी देगा। रास्ता बताने वाले को भी वो सवाब दिया जाए। किसी ने शराब की दुकान का एड्रेस पूछा, आपने सिर्फ उंगली से भी बता दिया कि यहां है दुकान, 6 नंबर पे नहीं, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, फलां जगह पर है। आपने उंगली के इशारे से या एड्रेस कोट करके बताया, तो फरमाया गया है कि वो अगर जाकर के इस्तेमाल कर लिया तो उसके गुनाह में तुम्हारा भी हिस्सा शामिल रहेगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो शराब के इस्तेमाल करने वालों पर जो लानत फरमाई वो 10 किस्म के हैं। अभी कल ही एक साहब ने मुझे फोन पे मसला पूछा था कि नई गाड़ी हमने ली है, वो एयरपोर्ट से सामान उठाती है और ले जाती है, लेकिन उसमें शराब की बोतलें ही ला दी जाती हैं, लोड की जाती हैं और दूसरी जगह, लेकिन हमारा उसमें से कोई हिस्सा नहीं है। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही फरमाया, शराब की अंगूर निचोड़ने वाला, अंगूरों से शराब बनाया जाता है, आमतौर पर दूसरे भी फ्रूट से बनाया जाता है, तो वो फ्रूट लेकर के निचोड़ने वाला और निचोड़ने के बाद उससे शराब बनाने वाला, शराब बनने के बाद बोतल में या कासे में डालने वाला, उसके बाद फिर उसकी पैकिंग करके उसे दुकान तक उठा करके लाने वाला, दुकान में बेचने वाला, दुकान में उसका हिसाब लिखने वाला, फिर खरीदने वाला, फिर उसका रास्ता बताने वाला, फिर आखिर में जाकर के पीने वाला। मेरे आका ने फरमाया सब लानत में बराबर के शरीक है। पी तो एक ही रहा है, 9 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो सबको इस गुनाह में शरीक कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हमने यही जवाब बताया भी कि अगर आपकी गाड़ी ये काम में मुलविस है तो शराब पीने का जो गुनाह है, आपको शराबियों की मदद करने का गुनाह जरूर मिलेगा। तो यहां पर इन आयात में यह बताया भी गया है कि जो अच्छी सिफारिश करे उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा, और जो बुरी सिफारिश करे उसका भी हिस्सा उसे दिया जाएगा। ये एक मसला है, आप याद रखें। आपकी जुबान से कभी ऐसा काम ना होने पाए कि आपके एड्रेस बता देने की वजह से कोई गलत काम कर गया। किसी को ऐसा रास्ता खोल के भी ना बताओ कि उस पर चलने के बाद वो गलत करने लग जाए, आप अगर से ना करो। बाज लोग ये कहते हैं कि मैं तो नहीं करता लेकिन इसको बता देता हूं, चाहे तो ये कर ले, तो तुम बराबर के शरीक हो जाओ। हाँ, जितना हो सके खैर की उनको दलालत करें, खैर के रास्ते बताएं, उन्हें ये तमाम चीजों को बता सकते हैं आप। अब एक और भी मसला आया था। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि हजरत मेरे पास कुछ लोग आते हैं, चिकन की दुकान है हमारी, हलाल कारोबार करते हैं, हलाल तिजारत करते हैं, लेकिन मार्केट में चिकन के मामला बहुत सारे अजीब और गरीब मामलात हैं, ये ब्रॉयलर चिकन वाले मामला। कहा कि कुछ लोग आते हैं, होटल वाले या फिर इस्तेमाल वाले मुझसे पूछते हैं कि हमको मरी हुई मुर्गी चाहिए, मरी हुई चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमारे यहां जायज भी नहीं, हलाल नहीं, हराम है और मैं इसकी तिजारत नहीं कर सकता। ये मसला तो बंदे को इतना मालूम है, मरे हुए जानवर की तिजारत करना वैसी है जैसे कुत्ते और खिंजीर की तिजारत कर रहे हैं। खिंजीर को नजिसुल ऐन कहा गया है, मुर्दार की तिजारत तुम्हारे लिए जायज नहीं है।
حرام چیز کی تجارت ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بیچتا لیکن مجھے معلوم ہے بہت سارے کچھ جگہوں پر اس کی تجارت ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ فورس کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ نہیں بھی دو تو یہ تو بتاؤ کہاں سے لینا. اس وقت میں کیا کروں میرے عزیز, وہی مسئلہ ہے. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے, گراہک بٹھانے کے لیے بول دینا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی, آپ وہاں سے کر. ہم نے کہا یہ چیز بتانا بھی جائز نہیں, آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں گے. برائیوں کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, کوئی نیا شہر میں داخل ہوا اور اس نے یہ پوچھا کہ یہاں پر زنا کے اڈے زیادہ کہاں ہیں, کوٹھے کہاں ہیں, معاذ اللہ. آپ نے پہلے تو توبہ کر لیا, کہا کہ یہ بہت بھیانک جرم ہے, میں تو کبھی نہیں جاتا ان کے سامنے, لیکن اگر تم کو کرنا ہی ہے تو جاؤ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ. تم نے ایسے ہی اس کو ہلکے میں کہہ دیا, مگر میرے عزیزوں بہت بڑا گناہ کا کام کیا تم. اس کو ہلکے میں مت سمجھ لینا. اگر کسی کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ فلاں جگہ تم کو یہ سب چیزیں مل جائیں, وہاں چلے جانا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ, میں تو کبھی نہیں کرتا. تم نے راستہ تو بتایا ہے کسی کو اس کا. اب اندازہ کرو راستہ بتانے والے کا جرم اتنا بڑا ہے, بھیانک گناہ ہے, تو کرنے والے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا. ان تمام چیزوں سے اوائڈ رکھیں, اور جتنا ہو سکے خیر کی دعوت دینی چاہیے, اور خیر کی سفارش بھی کرنی چاہیے, اور خیر کی طرف ایڈریس بھی کرنا چاہیے. لوگ جب بھی پوچھیں اچھائیوں کی باتیں ان کو فوراً بتا دیں. ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہوں. کوئی اگر اپنے دل کا علاج پوچھے کہ بے چین رہتا ہے, بے سکونی رہتی ہے, تو مجھے بتاؤ ہمارے تفسیر کے حاضر باش اکثر لوگ, کیا کبھی آپ نے اس کو ہی کہا کہ تیرے لیے بدھ کے دن مدینہ جامع مسجد کی ذکر کی مجلس شفا کا سبب بن سکتی ہے؟ نہیں بتایا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا. دلوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو تم خود نہیں آ سکتے تھے, کسی وجہ سے مجبوری ہے, تکلیف ہے, تو کسی کو اشارہ تو کر سکتے تھے کہ تیرے دل کا علاج ہے یہاں پر, تو جا کر کے اپنی بے سکونی کا علاج کر سکتا ہے, گھبراہٹ اور بے قراری کا علاج کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں خیر کی طرف بلانا یا خیر کی طرف اشارہ کرنا. آپ ان تمام چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیں اور اپنا مشن بھی بنا لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ صرف خیر کی طرف دعوت دینے والے کو بھی وہ اجر ضرور عطا فرمائے گا. قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے لیے جنت کا پروانہ ہو چکا ہوگا. وہ کون ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ گزر رہے تھے راستے سے, کسی ایک نارمل آدمی کو جو زیادہ دیندار نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, آپ نے تھوڑے دن اس کو دیکھا کہ یہ غلط راستے پر جا رہا ہے, کیوں نہ میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں. آپ نے اس کو پکڑا, کہا چلو مسجد چلو, یہاں تفسیر ہوتی ہے, درس ہوتا ہے, ذکر کی مجلس ہوتی ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے. تو آپ ایک بار لے کر کیا ہے, اور اسے مزہ لگ گیا, وہ مجلس میں آنے لگ گیا, اور اس کا دل بھی سدھرنے لگا, وہ ساری چیزیں چھوڑ دی. لیکن آپ غائب ہو گئے, آپ خود پہنچائے لیکن غائب ہو گئے, آپ سے ہی مسجد چھوٹ گئی, جس کو لائے تھے آپ مسجد چھوٹ گئی. اب ایسوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ مہربان ہے, رحیم ہے, کریم. قیامت کے دن یہ بندہ جب حساب ہوگا تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے راضی ہوں, تو جنت میں جا. اور جب جنت میں جا رہا ہوگا تو پلٹ کر کے دیکھے گا مجھے جو ادھر بھیجا تھا وہ تو آج پکڑا گیا ہے, وہ پھنسا ہوا ہے, اس کی نیکیوں میں کمی تھی, گناہ بڑھ گئے تھے, اور وہ پھنسا ہوا ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ بندہ رک جائے گا اور کہے گا اے مولا اس کا کیا حساب کتاب؟ کہا وہ ابھی نہیں جائے گا جنت میں, حساب لمبا ہوگا, پھنسا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں اس کی باقی. تو یہ کہے گا اے اللہ میں تو جنت میں جو جا رہا ہوں اسی کی وجہ سے جا رہا ہوں, اسی نے مجھے اپنے غلط راستے سے یہاں تک لانے میں مدد کی تھی, لیکن یہ خود نہیں آیا. اے مولا
मैं उस वक्त तक ठहरा रहूंगा जब तक इसका हिसाब ना हो जाए। इसीलिए ये वफादार क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तेरी सिफारिश कबूल है, अभी उसे लेकर चला जा, उसे माफ कर दिया जाए। मेरे अजीजों, ये है खैर की तरफ आपने इशारा भी किया किसी को तो उसके लिए अजर क़यामत के दिन ये हो सकता है। बस मैं तो यही समझता हूं, मैं खुद निकम्मा हूं, खुद मेरे अंदर कोई इबादत नहीं है, मेरी नेकियां नहीं है, मैंने कभी अपने आप की बड़ाई जाहिर नहीं की, लेकिन इस उम्मीद पर लोगों को नसीहत कर जाता हूं कि कल क़यामत के दिन आप सब बख्शे जाएंगे तो उम्मीद है रब तबारक व तआला की बारगाह में मेरे लिए सिफारिश तो कर देंगे। क्या है मौला, ये बंदा आया था जो हमें तेरी तरफ बुला रहा था, और अगर ये क़यामत के दिन आज फंस भी गया है तो मौला हम सब की सिफारिश कबूल फरमा ले। मुझे सिर्फ ये उम्मीद है, इसलिए ये बेड़ा संभाल करके हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह करीम है और उम्मीद है मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह करने वाले को मौला जलील नहीं होने देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैर खाही करने वाले को मौला रुस्वा होने नहीं देगा। मैं तो मुफ्ती आजम हिंद की वही दुआ अर्ज करता हूँ, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।